So we have started this initiative of like teaching or explaining penetration testing, which is nothing but ethical hacking in 8 hours. So in that we have decided like we'll spend 20% or 25% of the time in information gathering, the next 25% in vulnerability assessment, that is we will find weakness, and we will spend 50% of the time on the actual exploitation, that is actual hacking. So like for information gathering and vulnerability assessment, we can use any site. So that's not a big problem in terms of legality. But when it comes to exploitation, we cannot use any of the like public sites for exploitation because it may have legal consequence. So that is the reason we'll be using labs, and these labs will be, so we will be exploiting using labs, and mostly these labs will be the guided labs. So step-by-step instructions will be given to you, and you need to just follow the instructions, and then you will be able to do this. So this knowledge can be helpful in many different ways. So at this time, you may be a student in studying in a college. You may not be doing full-time job, but still there is something called as bug bounty. So this knowledge will be useful there also. So in bug bounty, mostly you will be doing the web-based penetration testing because you don't have access to any system. All that you have access is the public URL. So for example, when you are doing some penetration testing on Facebook using bug bounty, so all that you have is access to the Facebook URL, or maybe you can use some scans to find out some more information on that and then try to do it. But this bug bounty has some strict guidelines. So there are do's and don'ts mentioned. So this was once covered. Let me quickly share my screen. Okay, so most of the information that you require is given in this website. So if you go to cybersecurity job skills, there is something called bug bounty. You can just go here. And I think I should switch my language to Hindi. I forgot to do that. तो इसमें बग बाउंटी में आप देखेंगे, मुझे एक वीडियो भी दिया हुआ है, बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है. तो इसमें जाएंगे तो बड़े बड़े कंपनीज है, उनके खुद के जो भी साइट्स है या जो वहाँ का लिस्टेड है, तो आप देख सकते हो कि क्या कर सकते क्या नहीं. तो आप ट्राई कर सकते हो. तो इससे भी कुछ आप मतलब अगर आप कर पाए, सक्सेसफुल हुए, तो आपको कुछ पैसे भी मिल सकता है. ठीक है. तो कल जो किया हम एक क्विकली रिवाइज करेंगे. तो इसमें आप देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें 3 ही है मेन पॉइंट्स. तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के रिलेटेड जो भी हो सकता है वो यहाँ पे डाला है. तो क्या इतना ही टूल्स है? उसका आंसर नहीं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है और बहुत सारे टूल्स मोर और लेस सेम ही काम करते हैं. तो आपको सब टूल्स पता होना जरूरी नहीं है. आपको जो भी इंफॉर्मेशन के लिए जितना भी हो सकता है उतना अगर किया तो भी काफी है. तो दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. यहाँ पे कुछ टूल्स दिए, ये मोस्ट पॉपुलर टूल्स है. तो इसके अलावा भी टूल्स हो सकते हैं और बहुत सारे टूल्स पेड टूल्स होते हैं. तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, इवन लाखों में भी जा सकता है. तो ये मोस्टली जो भी टूल्स हम यूज करने वाले हैं ये ओपन सोर्स रहेंगे, तो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के. और एक्सप्लॉइटेशन में बहुत सारे लैब्स दिए हुए हैं, जैसे बगी वेब ऐप है, DBW है, मेटास्प्लॉइटेबल है. तो उसमें से हम एक देखेंगे और उसमें डेप्थ पे जाएंगे पूरा. तो इसमें और भी टूल्स है, कुछ पासवर्ड अटैक्स है. तो हम बहुत बार वीक पासवर्ड्स रखते हैं, तो हमें लगता है कि लेंथ बड़ा है इसका मतलब पासवर्ड स्ट्रांग है. तो हम इधर दिखाएंगे कि पासवर्ड मतलब वीक होने से कितना इजीली कोई हैक कर सकता है. और सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में आपको, अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है. तो ये रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या सेक्शंस रहेगा, ये सब आपको रहेगा. ठीक है. आई थिंक 9:04 हो गए हैं. लेट मी सी हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव. काउंट तो नहीं दिख रहा है. जस्ट अ मिनट. 16 काउंट है. ओके ग्रेट. सो हम शुरू करते हैं. 16 तो ठीक है, चलेगा. ओके. तो ये अभी जब मैंने बताया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है जो हमने लास्ट मतलब कल किया था. आज का भी सेशन है इंफॉर्मेशन गैदरिंग. तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, मतलब क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. और इसके अलावा आप खुद भी देख सकते हो कौन से टूल्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप जा सकते हो. ठीक है.
तो अभी इसमें तो मैंने कल आपको मैसेज पोस्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आज के सेशन में एक स्पेशल गेस्ट है। सो स्पेशल गेस्ट मतलब वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है या बहुत ज़्यादा मतलब 20-25 साल का एक्सपीरियंस है या ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आपके जैसा एक स्टूडेंट है, और बल्कि वो अभी रिसेंटली 10th पास हुआ है। उन्होंने अभी तक एडमिशन भी नहीं लिया क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में कुछ तो डिले हो रहा है। तो अभी ऐसा बोल सकते हैं 10th क्लास का स्टूडेंट है। तो उन्होंने ये साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, इसका जर्नी 3 साल पहले शुरू किया था। जब वो 7th में था तब से ही, 7th क्लास में तब से शुरू किया। तो उन्होंने 8th स्टैंडर्ड जब थे, तो उनका मैं बायोडाटा दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो आप देखेंगे जब 8th स्टैंडर्ड का, जब वो 13 साल का थे, तो तभी उन्होंने CH एग्जाम क्रैक किया। तो ये CH क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप ईसी काउंसिल की वेबसाइट पे जा सकते हो, या वहां जाने के बजाय आप इधर भी देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी टूल्स में सर्टिफिकेशन में देखेंगे एथिकल हैकर, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें होते हैं। तो एक एथिकल हैकर बनने के लिए ये 20 मॉड्यूल्स दिए हुए, इसमें बहुत सारी चीजें और ये बहुत डेप्थ में भी रहते हैं। और ये जो भी कोर्स है इनमें वो बोलते हैं कि इट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी, मतलब ये लोग सीधा अटैक करते हैं। इवन अभी जैसे ये वीकनेस फाइंड हो गया, सीधा अटैक करते हैं। इवन सिस्टम हैक में कैसे करना है, मैलवेयर कैसे करना है, स्निफिंग कैसे करते हैं, स्पूफिंग करके होता है, डिनायल ऑफ सर्विस रहेगा सोशल इंजीनियरिंग में। तो इसका अगर आप कोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही डेप्थ में रहता है। तो इसमें अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है इस तो आप इसका वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो एथिकल हैकिंग में अभी वो टॉप पे है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है पर टॉप पे है ईसी काउंसिल। तो आप देखेंगे CH द अल्टीमेट एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन, तो इसके कोर्स देख सकते हो और इसमें क्या क्या है। और इसका एक ब्रोशर करके भी रहता है, तो वो भी देख सकते हो। इसमें ब्लूप्रिंट करके कुछ रहता है, तो आप देख सकते हो क्या क्या चीजें इसमें कवर्ड है। तो इन्होंने 8 साल के उम्र में 8th क्लास में किया है। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि यंगेस्ट ऐसा कोई है क्या जो जिन्होंने ये कंप्लीट किया है। तो मुझे एक लड़की मिली थी पाकिस्तान की, तो वो 13 ईयर 6 मंथ्स की थी जब उन्होंने CH किया था। तो उस जब नमन ने किया था तभी वो 13 ईयर्स। तो उस केस में ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना जर्नी कंटिन्यू किया। उन्होंने अदर सर्टिफिकेशन CND करके, तो वो पूरा नेटवर्क का रहता है। तो आप देख सकते हैं CND, हाँ प्रोग्राम से आप जाएंगे तो इनके बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। CND सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, तो इसमें बहुत सारे जो फायरवॉल्स होते हैं, IDS होते हैं, IPS रहते हैं, वो सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब उसके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि डिटेक्शन कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन रिस्पॉन्ड क्या करना है, और प्रेडिक्ट कैसे करना है कि कब अटैक होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी चीजें है। तो इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस करके आता है जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करते हैं। तो ये हो गया CND। और उसके बाद उन्होंने अपना जर्नी वापस कंटिन्यू किया। उन्होंने ECSA करके किया, वो भी ईसी काउंसिल का ही है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ECS ECS पेन टेस्टिंग सेकंड लास्ट में, पेन टेस्टिंग सेकंड लास्ट, ओके थैंक यू। तो ECSA करके, अब ये ECSA क्या है? तो ऑलरेडी CH में तो एथिकल हैकिंग हो गया, मतलब हैकिंग के बारे में हो गया। CND पूरा नेटवर्क के बारे में। तो उसमें ये ईसी काउंसिल क्या है, मतलब ECSA क्या है? तो वो एडवांस लेवल में आता है। आप देख सकते हैं, देखो CND है, CHA और उसके बाद ECSA। तो ECSA में क्या रहता है, अगर आपको थोड़ा बहुत OSPF के बारे में पता रहेगा तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स के इसमें आता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको एक लैब दिया जाएगा और लैब में आपको कुछ नहीं, एकदम मिनिमम इंफॉर्मेशन रहेगा, और उनको आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट रहेगा। उनको 12 चैलेंजेस दिए थे, 12 चैलेंजेस, और वो 12 चैलेंजेस 1 महीने में कंप्लीट करना है। तो उसमें उनको क्या करना है कि बहुत सारे टूल्स जैसे Nmap यूज करेंगे, पूरा नेटवर्क को स्कैन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कौन से लाइव होस्ट है, फिर लाइव होस्ट के फिर कौन से पोस्ट ओपन है, फिर उससे और एडवांस या डीप स्कैन करके उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
है वो फाइंड करना है। अगर वो ओल्डर वर्जन है या कोई अपाची है तो उसका क्या वर्जन है, उससे उनको मतलब और डीप स्कैन करके ये फाइंड आउट करना है कि क्या है। अगर उसमें अगर कोई वर्जन यूज हो रहा है, अगर वो ओल्डर वर्जन है तो उसके रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स ढूंढो, फिर एक्सप्लॉइट्स के थ्रू यूज करके तुम्हें हैक करना पड़ता है, तो पेनिट्रेट करना होता है। तो 12 चैलेंजेस हमको कंप्लीट करना है, प्लस उसके बाद उनको रिपोर्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट में पूरा डिटेल में देना पड़ता है कि पूरा जो मेथोडोलॉजी रहता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, कि क्या क्या किया स्टार्ट से, वो पूरा उसका रिपोर्ट में देना पड़ता है। और उसमें ये लिखा मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर आपने उनका चैलेंजेस रहते हैं, चैलेंज नेम लिखना पड़ता है और उसमें आपने कैसे कैसे फाइंड किया, और उसके बाद एविडेंस देना पड़ता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, आपने तो रिपोर्ट में लिख दिया कि हाँ मैंने किया, बट उसका एविडेंस क्या है, सबूत क्या है। तो वो सबूत के तौर पे वो लोग क्या करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर फाइल या कहीं रहेगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पाथ पे जाओ और वहां पे एक फाइल रहेगा, उसका MD5 सम लेते हैं। तो MD5 सम उनको देना पड़ता है रिपोर्ट में, और वो MD5 सम एक्चुअल फाइल से मैच करते हैं कि उनको पता चलेगा हाँ ये वही फाइल है, क्योंकि MD फाइल बड़ा नंबर होता है, हम गेस नहीं कर सकते उसमें। तो ये एक तरह का ट्रेजर हंट जैसा हो गया कि जिसपे आपको थोड़ा क्लू दिया रहेगा, वो आपको बाकी को फाइंड करना रहता है। और इसके बाद ये पहला एग्जाम होता है लैब का, और उसके बाद उनको एक्चुअल एग्जाम के लिए बैठने देते हैं। और जब तक ये चैलेंजेस कंप्लीट नहीं करते तब तक एक्चुअल एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये था ECS से। तो फिर उन्होंने, अभी ये तो हो गया साइबर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद उन्होंने मशीन लर्निंग, AI या वो सब में उन्होंने मतलब पाइथन सब सीखा। तो वो भी एक फील्ड है, मतलब उसका डायरेक्टली रिलेशन साइबर सिक्योरिटी के साथ नहीं है, बट उसमें क्या है कि आपको एडेड एडवांटेज मिलता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में भी थ्रेट इंटेलिजेंस करके आता है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली कितने भी अटैक्स बनते हैं या जो भी लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस तरह से कौन सा टाइप यूज करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे जो चीजों 0 डे अटैक्स होता है, तो वो उसी दिन बनाए तो किसी के पास पैच अवेलेबल नहीं है। तो वो सब चीजों को करना है तो आपको मशीन लर्निंग यूज करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने वो सब किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्लाउड में एंटर किया। जैसे अभी अगर टॉप मोस्ट अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर है वो है Amazon वेब सर्विस। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक AWS प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। तो ये पूरा उनका जो जर्नी है, आप देखेंगे उनका एज ज्यादा नहीं है। तो ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा या बड़ा काम किया या ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरा ये बोलना है, मतलब मेरा एक बेसिक है कि आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग को ऐसा रहेगा कि अरे मैंने तो शायद मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, या मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या जो भी कुछ है, या मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। ये कुछ नहीं है, आप सब समझ सकते हो। एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा वो मशीन लर्निंग जैसे चीजें कर सकता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो 10th में कितना मैथ्स पढ़ा रहेगा, बट फिर भी उन्होंने किया है। तो ये जस्ट एक आपके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए है कि क्या कर सकते हैं। तो आज आई थिंक 13 मिनट्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो इनका भी प्रोफाइल ऑलरेडी भेजा, आप देखो, ठीक है। तो आज वो भी अपना कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। तो मैं उनको बोलूंगा कि नमन को कि उनका स्क्रीन शेयर करें, और आगे का जो उनका जो कुछ पॉइंट्स है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का वो बताएंगे आपको। सो नमन, आप अपना ये कर सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो। मैं अपना स्क्रीन शेयर हेलो, स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है। आपका स्क्रीन आप स्पॉटलाइट पे रख सकते हो अगर कोई ऑप्शन है तो। मुझे मेरे लिए स्पॉटलाइट में रखने का ऑप्शन नहीं है। ओके, चलेगा। तो आप मैं कर दो। अपना स्क्रीन शेयर हाँ, करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दो आप। लिनक्स दिख रहा है इसमें? नहीं, आपने अपना फेस वीडियो ऑन किया है क्या? हाँ, किया है। आपको नमन का वीडियो दिख रहा है क्या बाकी लोगों को? यस सर, यस सर। दिख रहा है ना? ओके ओके, चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हमने जो छोटे मोटे टूल्स यूज किए थे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, आज हम वैसे ही टूल्स यूज करेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि आज जो भी हम टूल्स यूज करने वाले वो सब ऑटोमेटेड होने वाले। मतलब हमें खाली टूल थोड़ा बहुत यूज करना आना चाहिए, जो मेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम है वो हमारा टूल कर देगा। कल जैसे हमने DNS एन्यूमरेशन किया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया था, वो सब चीजें हमारा टूल कर देगा। तो आज हम 3 टूल के बारे में सीखेंगे। पहला तो है माल्टेगो, दूसरा है लीजन और तीसरा है वायरशार्क। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं माल्टेगो से। तो अगर आपको
काले लिनक्स में कोई भी टूल को लोकेट करना है तो आप ये मेन्यू में जाके, इसमें भी देखा जाए तो आपने लिनक्स ने अलग से कैटेगराइज करके रखा है सारे टूल्स का। तो हम अभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के स्टेप पे, तो मैं जाऊंगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, फिर हमें मिलेगा ये टूल माल्टेगो। तो जब ये चालू हुआ था तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि माल्टेगो जो टूल है वो करता क्या है। तो माल्टेगो जो है सारे ओपन सोर्स, कोई भी आपका डोमेन हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है सारे ओपन सोर्सेस से। मतलब अगर समझो कि आपके पास एक वेबसाइट है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है, आप कोई गूगल सर्च करोगे, आप बाकी डीएनएस का इंफॉर्मेशन लोगे हु इस लुकअप करके, वो सब जो चीजें वो माल्टेगो आपके लिए करता है। तो ये हमारा माल्टेगो चालू हो गया है। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक इंटरफेस समझा देता हूँ। माल्टेगो एक चीज के ऊपर बेस्ड है, उसके हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्स। तो ट्रांसफॉर्म्स करते हैं कि हमें कैसे टाइप का डेटा चाहिए, वो ट्रांसफॉर्म मालूम पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है कि फार साइड डीएनएस भी ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं कि हम जो भी डोमेन स्पेसिफाई करते हैं उसके डीएनएस इंफॉर्मेशन हमें देता है। फिर आप देख सकते हैं कि वे बैक मशीन का ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये क्या करेगा कि हमें वो वेबसाइट पहले कैसे दिखता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्म्स है, तो ये अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्म्स हमें अलग टाइप का डेटा देंगे। तो ये तो था इसका बेसिक इंटरफेस। तो अब मैं आपको, अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करना है न्यू पर। इससे आपका एक ब्लैंक प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए हमारा जो खुद का वेबसाइट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं। तो आपको ये जो डोमेन है उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे इस प्रोजेक्ट पे। अगर आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो अगर आपको ये डोमेन नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं डोमेन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट paterva.com करके बताया है, जो माल्टेको का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है जिसके हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो यहाँ पर हम हमारा वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो ये तो बस हो गया हमारे डोमेन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म्स क्या करते हैं कि आपको अलग अलग टाइप का डेटा देते हैं। तो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा पाने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म्स को अप्लाई करना पड़ेगा इस डोमेन पे, यानी कि अलग अलग टाइप का डेटा लेना पड़ेगा इस डोमेन से। तो मैं इसे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करने का ऑप्शन मिला है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप ला सकते हो, लेकिन इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए हम बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रांसफॉर्म्स यूज करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जो ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल है, जो जो डेटा हम लोग निकाल सकते हैं, वो सारे ट्रांसफॉर्म्स, वो सारा डेटा हमें मिल जाएगा इसे एग्जीक्यूट करने से। तो ये अभी रन हो रहा है। तो यहाँ पर इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी डोमेन्स रजिस्टर्ड है वर्डप्रेस के अंदर वो सब यहाँ पर हमें दिख रहा है। ये सब हमारे डोमेन हो गए। फिर सारे हमारे डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो सब हमें दिख रहे हैं। तो माल्टेको एक ऐसा टूल है
जो मोस्टली अगर आप एंटरप्राइज में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो और आपको बहुत डीप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप माल्टेको यूज करते हो। तो माल्टेको भी देखा जाए तो एक पेड टूल ही है, लेकिन हम उसका कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किए हैं। तो कम्युनिटी एडिशन फ्री है, बस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स है, लेकिन अगर आप उसका एंटरप्राइज वर्जन लेते हो तो उसके अंदर आपको सारे ट्रांसफॉर्म्स मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो फिर हमारे पास सारे ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल है, वही एंटरप्राइज में सारे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। तो कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें एंटरप्राइज में, लेकिन अगर आपको कोई स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा है, फिर आपको कोई छोटा मोटा काम है, वो आपको कम्युनिटी एडिशन से हमेशा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म्स यूज करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलता तो है, लेकिन इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है हमें। अब तक डीएनएस रिकॉर्ड्स और जो भी रजिस्टर्ड डोमेन्स है वर्डप्रेस के अंदर, वो सब के बारे में हमें मिल रहा है। अगर आप चाहे तो समझो कोई एक स्पेसिफिक डोमेन है, उसके ऊपर आप और ट्रांसफॉर्म्स रन कर सकते हो, यानी कि इसके ऊपर आप और डेटा ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने एक स्पेसिफिक डोमेन का एक स्पेसिफिक सब डोमेन का हमने अगर ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई किए, तो हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी मिल जाता है, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे ही अगर आप, ये तो हमने सिर्फ एक डोमेन को ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर हमने सिर्फ एक डोमेन पर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। ऐसे ही देखो कितने सारे डोमेन है हमारे पास। देखो ये सारे डोमेन है, इसके बारे में तो हमने कुछ किया भी नहीं, लेकिन हम सिर्फ एक डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन लाकर हम इनके जो ईमेल एड्रेसेस लिंक्ड है इससे, फिर इनके हेडक्वार्टर्स का लोकेशन, फिर उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है वो, और जो पर्सनल इंचार्ज है उन सब के बारे में हम डेटा निकाल सकते हैं। तो जैसे ये तो सारे सिर्फ बेसिक ट्रांसफॉर्म्स थे। जैसा कि जब आप एडवांस ट्रांसफॉर्म्स यूज करोगे तो उसमें आपको और ज्यादा डेटा देखने मिलेगा। तो ये सब था माल्टेको के बारे में। हमारे पास एक और टूल है, उसका नाम है लीजन। तो लीजन चालू करने से पहले आपको बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जाते हो तो आपको इतने सारे टूल्स है, एनमैप, रिकॉन इंजिन, नेट डिस्कवर, माल्टेगो। तो लीजन क्या करता है कि एक नेटवर्क स्कैनर जैसा है, जो ये सारे टूल्स आपको साथ में यूज कर लेते हैं। जो भी एनमैप वगैरह है, अगर आप मैनुअली टेस्टिंग करोगे तो आप बहुत सारे एनमैप कमांड्स रन करोगे, फिर आप निक्टो कमांड्स रन करोगे, यानी कि आप 5-6 टूल्स यूज करोगे और उसमें अलग अलग एग्जीक्यूट करोगे और सबका रिपोर्ट को एक साथ कंबाइन करोगे। तो लीजन क्या करेगा कि आपको ये सारे अलग अलग टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सारे टूल्स के फंक्शनैलिटी आपको एक ही ऐप में मिल जाते हैं, वो है लीजन। तो लीजन को यूज करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने पहले पहले से एक स्कैन रन किया है, क्योंकि लीजन का स्कैन रन होने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो अगर आपको एक डोमेन स्पेसिफाई करना है अपने स्कैन के लिए या फिर आईपी एड्रेस के लिए, आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है ऐड होस्ट पर, और यहाँ पर अपना डोमेन को स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम हमारा ही वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं, तो हमने हमारा यूआरएल डाल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एडवांस स्कैनिंग मोड्स मिलेंगे। आप या तो इजी कर सकते हो या तो हार्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि इजी करेंगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हार्ड करोगे तो ज्यादा टाइम जाएगा और जितना हो सकता है वो ये टूल गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये जो टूल है लीजन, वो अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं, जैसे कि एनमैप हो गया, निक्टो हो गया, इन सबको कंबाइन करके एक टूल में रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनमैप होस्ट डिस्कवरी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, रन स्टेज एनमैप स्कैन। अगर आप ये हार्ड मोड पे आते हैं तो आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि टीसीपी स्कैन, स्टिल्सन, फिन, नल, एक्समा स्कैन, ये सब क्या है। तो ये सब जो स्कैन है वो एनमैप स्पेसिफिक है। अगर आपने कभी एनमैप का टूल यूज किया होगा तो आपको ये सारे स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर हमारा टूल क्या करता है कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे देता है, ये बैकग्राउंड में एनमैप स्कैन हमारे लिए रन कर देगा। इससे हमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल पे रखा है। अगर आप चाहे तो इसे इंसिन भी ले सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पर है एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि ये वही है, अगर आपने एनमैप यूज किया रहेगा तो फिर आप कमांड स्पेसिफाई कर सकते हो, एडिशनल पैरामीटर देके आप अलग अलग टाइप के स्कैन रन कर सकते हो। यानी कि टीसीपी स्कैन रन करोगे ये देके, या फिर ए पैरामीटर चेंज करके आप ये फिन स्कैन रन कर सकते हो।
तो ये सारे चीजें को मैनेज करने के लिए हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है। तो अभी मैं ये रन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ही स्कैन रन करके रखा है, और अगर मैं स्कैन रन करता हूँ तो कुछ घंटे ले जाएंगे क्योंकि स्कैन बहुत इंटेंसिव स्कैन है और बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही हमारे वेबसाइट को स्कैन करके रखा है। यहाँ पर हमें ओपन पोर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक HTTP पोर्ट, है और एक HTTPS पोर्ट है। तो हमें ये तो मालूम है कि ये दोनों पोर्ट्स ओपन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक बग्स ढूंढ सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको मैं यहाँ पर हमें उसका इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर सीवीज तो नहीं मिल रहे। आपको पहले बता देता हूँ मैं सीवीज क्या होते हैं। समझो कि हम एक वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं और उस वेबसाइट के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज है। तो हर वल्नरेबिलिटी का एक नंबर होता है, उसे कहते हैं हम सीवी नंबर। एक वेबसाइट होता है, उसके अंदर सारे वल्नरेबिलिटीज मेंशन्ड होते हैं और सब, और हर वल्नरेबिलिटी को सीवी नंबर दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही सिक्योर वेबसाइट है क्योंकि हमने वर्डप्रेस से बना है। समझो कि ऐसा ही कोई HTTP वेबसाइट होगा जो ज्यादा सिक्योर नहीं है, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे सीवीज देखने मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज देखने मिलेंगे। उसके ऊपर आप कोई ना कोई एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हो। तो जब हम लोग एक्सप्लॉइटेशन के सेशन में आएंगे, हम एक, जैसे हमने पहले बोला था, हमने एक लैब सेटअप करने वाले हैं। उसमें हम लोग यूज करेंगे एक DBWA करके, जो है एक वल्नरेबल वेबसाइट है। तो हम उसी वेबसाइट पे स्कैन वापस रन करेंगे, फिर हम लोग सीवी में देखेंगे, वहां पर हमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज मिलने वाले। अगला चाहते हैं कि हमने निक्टो स्कैन, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा ये जो टूल है वो सारे स्कैन रन कर देता है। तो इसने निक्टो स्कैन भी रन किया पोर्ट 80 यानी कि HTTP पोर्ट पे। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हमें उनका IP एड्रेस है, स्टार्ट टाइम है, और यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमें लिखा है कि द एंटी क्लिक जैकिंग एक्सट्रीम ऑप्शन हेडर इज नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट है वो क्लिक जैकिंग से वल्नरेबल हो सकता है। क्योंकि हमें निक्टो स्कैन से पता चला है, तो ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है। अब ये क्लिक जैकिंग से वल्नरेबल है, तो हम एक्सप्लोरेशन के स्टेज में हम क्लिक जैकिंग ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन हेडर इज नॉट डिफाइंड, तो ये भी एक पॉपुलर टाइप ऑफ वेब अटैक है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लोरेशन के सेशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमारा ये जो वेबसाइट है, ऐसा हो सकता है कि वो क्लिक जैकिंग से वल्नरेबल हो और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से भी वल्नरेबल हो। तो जब हम एक्सप्लोरेशन में हम इस वेबसाइट को टेस्ट करेंगे कि इसमें एक्सेसेस या फिर क्लिक जैकिंग प्रेजेंट है कि नहीं। अभी वही जो स्कैन है हमने पहले HTTP पोर्ट पे रन किया था, वही हमने अभी HTTPS पोर्ट पे रन किया है। तो हमें वही सेम हमें वल्नरेबिलिटीज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें वही सेम वल्नरेबिलिटीज मिल रहे हैं हर जगह पर, लेकिन वही सेम वल्नरेबिलिटीज मिल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस वल्नरेबिलिटीज है। जो भी क्लिक जैकिंग हो गया, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, ये बहुत ही सीरियस वल्नरेबिलिटीज है और ये OWASP टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। तो अगर मैंने अभी मेंशन कर ही दिए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि OWASP टॉप 10 होता क्या है। तो जो भी वेबसाइट्स है उसके ऊपर जो वेब अटैक्स होते हैं कि किसी ने पासवर्ड स्टीलिंग हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया, तो एक टॉप 10 मोस्ट कॉमन वेब अटैक्स का एक लिस्ट बना के रखा है। OWASP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टॉप 10 लिस्ट है कि सबसे ज्यादा वेबसाइट पे कौन से टाइप्स के अटैक्स होते हैं। तो उसे कहते हैं OWASP टॉप 10 लिस्ट। तो OWASP के टॉप 10 लिस्ट में, लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड वेब अटैक्स में, उसके अंदर ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्लिक जैकिंग दोनों आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीवियर वल्नरेबिलिटी है। यहाँ पर सर्विस में वही देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पोर्ट्स ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्कैन है हमारा, ये पूरी तरीके से रन नहीं हुआ है। अभी भी निक्टो स्कैन रन हो रहा है, ये हमने पूरा स्कैन रन नहीं किया तो भी हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ अभी तक नॉर्मल मोड में रन किया, क्योंकि जो हार्ड और इनसेन मोड से बहुत टाइम चला जाता है। अगर मैं वैसे मोड में रन करता तो हमें और कितना डेटा मिलता था। तो ये था निक्टो। अगर आप कोई भी डोमेन को स्कैन कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, आपको नॉर्मली Nmap या फिर निक्टो यूज करना पड़ेगा। अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हो तो फिर आप ये टूल यूज कर सकते हो। जो उन दोनों के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और इजी टू यूज है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये था निक्टो के बारे में। तो मैं अगला टूल जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है वायर शार्क। उसके पहले मैं ओपन कर देता हूँ मैं। तो पहले मैं आपको बता दूं वायर शार्क के बारे में। तो वायर शार्क एक ऐसा टूल है जो हमें नेटवर्क में पैकेट कैप्चर करते हैं।
तो अगर आपको कि कोई तो मुझे एरर देता है कि मुझे हर बार उसको अलाउ करना पड़ता है। तो वायरशार्क जो है नेटवर्क में हमारे पैकेट्स कैप्चर करता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर हमारे जो भी डेटा ट्रांसफर होता है ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट, सब होता है डेटा पैकेट्स के फॉर्म में। तो जो भी पैकेट्स हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस है, जो हमारा वाईफाई कार्ड है, वहां से लेके हमारे नेटवर्क में जो भी पैकेट जा रहे हैं, समझो कि मैं गूगल साइट एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा एक गेट रिक्वेस्ट रहेगा गूगल का, वो फिर जो भी हमें डेटा आ रहा है बाहर से राउट मतलब इंटरनेट से हमारे वाईफाई कार्ड से, और हमारे वाईफाई कार्ड से हमारे पूरे नेटवर्क और इंटरनेट में, वो सारे पैकेट कैप्चर करता है वायर शार्क में। तो मोस्टली वायर शार्क किस लिए यूज होता है? नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए। समझो कि आपको आपके नेटवर्क में कोई नेटवर्क स्कैन रन करे, जैसे कि हमने पहले नेटवर्क स्कैन रन किया था, हमने वर्डप्रेस के वेबसाइट पर रन किया था। सोचो कि आपके नेटवर्क में किसी ने नेटवर्क स्कैन रन किया है, तो वैसे सारी चीजें आप वायर शार्क से डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई भी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, उसके ट्रबल शूटिंग के लिए वायर शार्क यूज होता है। लेकिन वायर शार्क का एक और यूज है मैन इन द मिडल अटैक में। तो पहले मैं आपको वायर शार्क चालू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है। समझो कि आपका मशीन और गूगल के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, आप कुछ पासवर्ड भेज, समझो कि आप लॉग इन कर रहे हो, तो जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाते हैं। यानी कि अगर किसी ने, जैसे कि हम फोन टैप करते हैं, जैसे गवर्नमेंट फोन टैप करता है, वैसे ही हम एक कम्युनिकेशन में जाके बीच में से इंटरसेप्ट कर सकते हैं और सारा डेटा ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट सिक्योर होते हैं HTTPS ट्रैफिक से होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है HTTP और HTTPS में, कि HTTPS पे सारा ट्रैफिक एनक्रिप्टेड होता है। अगर मैंने इनका कनेक्शन टैप कर भी लिया, इनका सारा डेटा ले भी लिया, तो मैं इनको पढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी आपने पासवर्ड भेजा, जो भी आपने डेटा भेजे लॉगिन में, वो सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम एक पासवर्ड लेने की कोशिश करेंगे एक वेबसाइट से, जो है HTTP। तो पहले मैं हमारा वाईफाई कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, इसे डबल क्लिक करूंगा, तो ये हमारा कैप्चर चालू हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियल टाइम में जो भी नेटवर्क ट्रैफिक जा रहा है, कोई भी जो भी पैकेट्स मेरे मशीन को सेंड हो रहे हैं, जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरे मशीन से जो भी पैकेट जा रहे हैं, वो सब हमें रियल टाइम में दिख रहे हैं। तो आपको मैं पहले इंटरफेस बता देता हूँ। ये बटन से हमारा कैप्चर चालू होता है, ये बटन से कैप्चर बंद होता है। फिर हमें ये सारे फिल्टर्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ब्राउजर खोल के एक वेबसाइट को एक्सेस करूंगा, तो वो सारे पैकेट इसमें दिखने चाहिए। मैं वेबसाइट में जाने वाला हूँ। मैंने ये वेबसाइट क्यों चूज किया, क्योंकि ये एक HTTP वेबसाइट है और इसमें मैंने टेस्ट किया है। इसमें सारे पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, जो बहुत ही रिस्की चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लॉग इन पोर्टल है, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पर समझो मैं एक एनरोल नंबर दे दिया और मैंने एक रैंडम पासवर्ड दे दिया। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं टाइप किया फेक पासवर्ड करके। तो देखा जाए तो ये इन आइडियल सिनेरियो हमेशा ट्रैफिक एनक्रिप्टेड होना चाहिए, और किसी ने भी अगर डेटा इंटरसेप्ट करता है यहाँ से, तो उन्हें ये डेटा मिलना नहीं चाहिए, उन्हें ये रीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर हम एरर है क्योंकि वो पासवर्ड गलत था, एनरोलमेंट नंबर भी गलत था। लेकिन जो भी हमने डेटा भेजा है वो हमारे वायर स्टैक में कैप्चर हो गया है। तो हमें जो करना था हमने अभी कर लिया, तो हमें स्टॉप कैप्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट को एक्सेस किया था, उसको हमने HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके एक्सेस किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैकेट थे। तो इतने सारे पैकेट में ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसे आसान करने के लिए हमारे पास फिल्टर्स है। तो हम फिल्टर्स में क्या अप्लाई करेंगे, हम HTTP से सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ HTTP पैकेट्स रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें इसमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F करूंगा, पैकेट बाइट्स, यानी कि पैकेट के अंदर जो भी डेटा जा रहा है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी मैं लॉग इन करता हूँ, मैं अपना यूजर नेम देता हूँ, यानी कि एनरोलमेंट नंबर 12345, और पासवर्ड जो था फेक पासवर्ड। ये जो भी एक डेटा पैकेट के अंदर गया है मेरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से इनके वेबसाइट तक, तो वही पैकेट को हमने कैप्चर किया है। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वेबसाइट है ये HTTP वेबसाइट नहीं है। तो जो भी हमारा डेटा गया पैकेट के अंदर वो एनक्रिप्टेड था ही नहीं, तो कोई भी उसे आसानी से रीड कर सकता है। तो मैं पैकेट बाइट्स में सर्च करने वाला हूँ, यानी कि जो हर जो पैकेट हमने सॉर्ट किया HTTP में,
हमारे जो सर्च है वो हर एक पैकेट के अंदर के बाइट्स रीड करेगा और हमें डेटा देगा। तो मैं अभी पासवर्ड के लिए सर्च करता हूँ। अभी हमें मालूम पड़ गया कि ये जो स्पेसिफिक डेटा पैकेट है इसके अंदर पासवर्ड स्टोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डेटा है जिसको हमने पासवर्ड लेबल किया है। मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, फिर फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। ये यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो एनरोलमेंट नंबर दिया था 12345 और फेक पासवर्ड, ये दोनों हमें मिल गए। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट वेबसाइट होने के बाद भी ये कितना इनसिक्योर है। कोई भी अगर आपका पैकेट कैप्चर करता है तो आपका जो भी पासवर्ड है, आपका यूजर नेम है, सब प्लेन टेक्स्ट में जाता है और कोई भी अटैकर इसे ले सकता है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसे साइट्स बताने वाला हूँ जो भी नॉर्मल HTTPS साइट है, अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो भी पैकेट कैप्चर नहीं होने वाले। तो ये तो था हमारा HTTP साइट का। मैं अभी एक और कैप्चर रन करने वाला हूँ ये दिखाने के लिए कि HTTPS साइट कैसे सिक्योर होते हैं इन मामलों में। मैं करूँ कंटिन्यू विदाउट सेविंग और मैं माइक्रोसॉफ्ट एज से ही मैं यूट्यूब एक्सेस करता हूँ। तो ये सारे मैं HTTPS साइट एक्सेस कर रहा हूँ। तो फिर अब मैं फिल्टर को हटा देता हूँ और मैं हमारे पैकेट कैप्चर को ऑफ करता हूँ। फिर मैं फिल्टर में देखता हूँ कि मुझे कोई HTTP ट्रैफिक आया कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वेबसाइट विजिट की, लेकिन फिर भी मेरे पास HTTP ट्रैफिक है ही नहीं, क्योंकि जो भी कनेक्शन था एनक्रिप्टेड थे, इसलिए हम पैकेट कैप्चर ही नहीं कर पाए। तो ये जो मैंने बताया है, जो पैकेट कैप्चर करना, अगर आप अपने नेटवर्क से, आप इंटरनेट से पैकेट कैप्चर कर रहे हो, ये सिर्फ HTTP वेबसाइट पे काम कर रहा है। लेकिन सपोज कि आपने कोई एक ऐसे ही किसी HTTP वेबसाइट के आप पेन टेस्ट रन कर सकते हो। तो ये बहुत ही मोस्ट वेल नोन वल्नरेबिलिटी है इधर, कि सारे पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होते हैं। तो आपको कोई भी वेबसाइट दिख रहा है जिसके अंदर लॉगिन एरो HTTP है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें काम करने वाला है। तो ये था आज के 3 टूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमारे पास कुछ फिशिंग टूल्स भी है। अभी हमने आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बताया। अभी यही इंफॉर्मेशन यूज करके कुछ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। समझो कि आपको कोई ईमेल आया है कि आपने प्राइज जीता है, आप लिंक क्लिक करोगे, फिर आपसे वो ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेंगे, आप वो दे दोगे, फिर वो आपको ना कुछ प्राइज मिलेगा लेकिन सिर्फ उनके पास पासवर्ड चले जाएंगे। तो वही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हेलो नमन। हेलो। मैं टेक ओवर करूँ क्या? हाँ ओके, थैंक यू नमन। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया 3 टूल्स मल्टीकोर और ओके, 3 टूल्स आपने एक्सप्लेन किया। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। या मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अभी हमने 3 टूल्स देखे। वो जो 3 टूल्स है उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो, मल्टीकोर, लेजियन और वायरशार्क है। तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब वीडियोस लिंक किए हुए हैं और ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। मतलब यही वीडियो देखना जरूरी नहीं है, आप जो भी देख सकते हो इसके रिलेटेड आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वो देख सकते हो। तो वायरशार्क विंडोज बेस्ड भी अवेलेबल है। अगर आपको काली लिनक्स नहीं है आपके पास, फॉर सम रीजन नहीं हो रहा है इंस्टॉल या जो भी है, तो आप वायरशार्क विंडोज बेस्ड वर्जन भी ये कर सकते हो। लेकिन मल्टीकोर लेजियन के लिए आपको काली लिनक्स लगेगा। ठीक है, तो अभी इस डेमो में जो वायरशार्क यूज किया गया था वो विंडोज बेस्ड ही था। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कुछ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। तो कल हमने देखा था कि जेड फिशर करके एक टूल है जिससे आप कोई भी ऐसे फेक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एंड देन किसी को भेजेंगे एंड देन वो लोग वो ट्रैप में आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको ये करना है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये लोग यूज करते हैं। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करियर बनाना है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें मतलब ये तो फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं जितने भी टूल्स है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब प्रीमियम टूल्स है, आपको मिल जाएगा। और एक ही टूल नहीं है, जेड फिशर एक टूल है, ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप मिलेंगे। सोशल फिशर करके है,
और एडवांस फीचर करके बहुत सारे हैं, तो सब में मोर और लेस सेम फीचर्स रहते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि कोई टूल नहीं काम करे, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्राई करो। तो इसमें ऐसा 100% सक्सेस रेट ऐसा करके कोई चीज होता नहीं है, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। ये चल रहा है, फिर वो नहीं चल रहा है तो ठीक है, वो नहीं तो दूसरा, वो नहीं तो फिर तीसरा, एंड सो ऑन। तो कल का जो जेड फीचर है, आई थिंक एक दो लोगों ने कुछ कमेंट्स किया है कि कमेंट्स मतलब क्वेश्चन पूछा है कि अरे मुझे तो नहीं चल रहा था। तो कल मैंने सीधा डेमो पे गया था, तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा। तो अभी जैसे कि आई थिंक जेड फीचर, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा, तो इस पे स्टेप्स दिए हुए कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्या गिटहब लिंक दिया हुआ, वहां पे जाके आपको ये कमांड्स रन करना है और आप सीरीज जेड फीचर करोगे। उसके बाद जो स्टेप्स दिया है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी और का कुछ पासवर्ड हैक करने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर करेंगे तो देखो, इधर एक सेक्शन मेन टॉप पे ही रखा है। अगर आपको कभी कुछ लग रहा है कि ये लीगल है इलीगल है, आप साइबर लॉस के अंदर जाओ और इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं साइबर लॉस के रिलेटेड, तो आप पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कोई भी किसी का अगर पासवर्ड हैक करना है, ये करना है, ठीक है, वो चीज इलीगल होता है, उसके लिए आपको जेल भी हो सकता है। तो ये आप देख लो। तो अभी इसके लिए हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अगर आपका कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं दूसरे कुछ टूल्स है वो मैं बताता हूँ। अभी ये एक टूल था जेड फिशर, और एक टूल है, मतलब ऐसे बहुत सारे टूल्स है, मतलब इसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं की है। अभी जैसे सोशल फिश है या एडीबी फिशिंग है, ये भी सेम है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ये अलग अलग लोगों ने बनाया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप का। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे व्हाट्सएप लिंक्स आते हैं आपको कि ये वाला आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, में भी अलग अलग चीजें रहेगा। तो आप क्या है कि बोलते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ही तो है, ऐसे आपने कई सारे ज्वाइन किए, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है ऐसा आपको लगता है, बट क्या हो सकता है आपके साथ, उसका एक छोटा सा डेमो है, ठीक है। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया है क्या करना है, डब्ल्यूगेट करके वो पैकेज डाउनलोड करना है, कुछ है। मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा मैं, ठीक है। ये जो एक्सेस की दिख रहा है वो टोकन मेरा है, तो आपको खुद टोकन बनाना पड़ेगा, उसका स्टेप्स भी दिया है कैसे आपको टोकन बनाना होता है, ठीक है। तो एक्सेस की पर्सनल होता है, तो ये स्टेप्स है। तो मैं जब भेजूंगा तो आपको एक्सेस की निकाल के दूंगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको डेमो दिखाता हूँ। तो ये तो मैंने जो डाउनलोड वो सब किया है मैंने, तो मुझे सिर्फ ये डायरेक्टली कमांड चलाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे काली लिनक्स में जाता हूँ। सो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो नमन ने यूज किया है और मैंने यूज किया, काली लिनक्स सेम है। तो हम क्या करते हैं, हमारे दो मशीन से अलग अलग है, तो उन्होंने मेरा रिमोट डेस्कटॉप लिया हुआ था और उसमें कर रहे थे, तो एक्चुअली हो रहा था मेरे मशीन में, बट दिख उनको रहा था। तो आपको रिमोट डेस्कटॉप आइडिया रहेगा, ठीक है। तो मैं रूट में जाता हूँ, अपने पास 17 मिनट्स है, 17 मिनट्स में खत्म करना है। ओके, मैं रूट में गया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, ये कौन सा है टूल, टूल का नाम भूल गया मैं, सीकर करके टूल है, ओके। तो सीडी सीकर करके, तो इसमें ऑलरेडी सब इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो अभी मुझे सिर्फ ये क्या करना है, ये वाला कमांड रन करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये चालू हो गया रनिंग। तो इसमें मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं सेकेंड नंबर से व्हाट्सएप प्रेस करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ग्रुप बहुत सारे लिंक्स आते हैं, आप कभी वेरीफाई नहीं करते, आपको वेरीफाई भी करना है तो क्लिक करना पड़ेगा। और ह्यूमन बींग्स का क्या रहता है कि क्यूरियस रहता है, क्लिक अगर जो चीज बोलेंगे ना मत करो, बोलता है लिंक पे मत क्लिक करो, बोलता है नहीं एक बार देखता हूँ कैसा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जो बोलते हैं मत करो वो चीज करके देखते हैं, क्योंकि उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। तो अभी जैसे एक है, अभी जो बनाने वाले ऐसे बनाते हैं ताकि लोग मतलब क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है। आपको पता है नेटफ्लिक्स एक पेड न्यू मूवी साइट है, तो अगर आपको ऐसा कुछ आए तो क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि फ्री नेटफ्लिक्स मूवीज, ठीक है, ऐसा करके एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसको नेटफ्लिक्स का कोई आइकन दे दिया। तो ये ऑलरेडी एक पीएनजी फाइल है, netflix.png, मतलब इमेज फाइल है, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, netflix.png, ठीक है। तो अभी वो अपना स्टार्ट कर रहा है, सर्वर स्टार्ट कर रहा है।
ठीक है, तो इसमें देखता हूँ इसमें भी और क्लाइंट स्टार्ट करना पड़ता है क्या? हाँ, तो इसमें एक और टर्मिनल ओपन करके मुझे ये वाला रन करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके वापस काली लिनक्स में जाता हूँ, तो एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये और टर्मिनल ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करने से टर्मिनल ओपन होता है। तो मैं वापस मैं रूट पे जाता हूँ। रूट पे जाने के लिए sudo su हाइफन करना पड़ता है, फिर वो काली का पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट काली होता है वो करना है। ठीक है, अब मैं वापस ls हाइफन l करके देखता हूँ, तो इधर ngrok करके है, तो ngrok पे जाता हूँ। सो ngrok क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे लोकल नेटवर्क पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भेजूंगा वो कहीं पे भी हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में हो सकता है, वो उसका नेटवर्क अलग हो सकता है, हर चीज अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज है कॉमन, वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट से राउट करना है तो आपको ngrok जैसा टूल यूज करना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको करना है तो आपका खुद का एक स्टैटिक पब्लिक आईपी होना चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो टेम्पररी है, आप कर सकते हो। तो मैं वो जो कमांड है वो पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये लिसनर मोड पे चालू है, तो ये आपका अभी लिसन करना शुरू कर दिया। तो अभी ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो किधर जाएगा, वो ट्रैफिक इधर आएगा, मतलब मेरे लोकल होस्ट मतलब इस मशीन पे आएगा। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी मैं अगर आपको भी भेजूं, अगर आपने वो लिंक क्लिक किया, जस्ट क्लिक मैं बोल रहा हूँ, तो आपके सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। बट मैं आपको रिस्क नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि ये रिस्की है। फिर बाद में आप बोल सकते हो कि मतलब आपको डर रहेगा मैंने आपका और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिया रहेगा। और चूंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए अगर मैं अपने सिस्टम में कर रहा हूँ तो उसमें कोई वायलेशन नहीं है, इलीगल नहीं है। और ये जो भी है एजुकेशनल पर्पस। तो इधर मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप ओपन है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे आप, जैसे लिंक आएगा तो ऐसे लिंक मतलब व्हाट्सएप पे ही भेजा है समझ लो, तो आपको ये लिंक आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है इधर बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मैं आपको, अभी मुझे पता नहीं कौन सा विंडो पे आएगा, ये दोनों में से कोई एक विंडो पे आपको यहाँ पे मशीन डिटेल्स आएंगे। अभी आप देखेंगे कनेक्शन दिख रहा है, आप जस्ट देख लो, कनेक्शन आ गया। और दूसरा विंडो जो है इसके अंदर वेटिंग फॉर यूजर इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये दो विंडो देखो। अभी यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया है। अभी मैं एक्शन करने वाला हूँ, जैसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसमें सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या है, उनको थोड़ा सा कन्विंस करो, अरे दिस इज दी, मतलब बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, फ्री नेटफ्लिक्स मिलेंगे आपको, इतना जीबी मिलेगा, ऐसा करके थोड़ा सा कंटेंट बनाएंगे और बना के उनको भेजेंगे। तो अब उनको क्या लग रहा है, ये तो व्हाट्सएप नेटफ्लिक्स वाला है, तो ये चीज मैं ब्राउजर के थ्रू पीसी पे कर रहा हूँ, बट आपको मोबाइल पे भी अगर लिंक भेजूं, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेम आएगा। आपको क्या लग रहा है, अरे वाह फ्री नेटफ्लिक्स मूवीज मिल रहा है, मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो अभी जस्ट लिंक पे क्लिक हुआ, अभी तक ज्वाइन बटन पे क्लिक नहीं हुआ। अभी लिंक पे क्लिक होने से क्या हुआ आप देख सकते हो। चलेगा, तो अभी हम देखेंगे। अभी तक उनका आईपी मिलना चाहिए, मिला नहीं है, बट फिर भी ट्राई करते हैं ज्वाइन करने से क्या होता है। ओके, तो इसमें अभी एरर क्या दिया, मैक्सिमम ग्रुप कैपेसिटी ऑफ 256 पार्टिसिपेंट रीच्ड। ओके, तो ये एक्चुअली झूठ है, क्योंकि ये वेबसाइट ग्रुप ही नहीं है, ये अटैक करने भेजा हुआ कस्टमाइज्ड फेक लिंक है। ये तो सिर्फ आपको मतलब ये बता रहे कि अरे हो गया, तो आप थोड़ा सा आप बोलेंगे अरे कुछ दिन पहले ट्राई किया तो अच्छा होता, आप यहाँ देख सकते अच्छा होता, तो मिस हो गया तो कोई बात नहीं, वापस जब आएगा कोई नया लिंक आ जाएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। हाँ, तो इस पे मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो आप क्या करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आपको अभी तो कोई शक हुआ ही नहीं कि क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, आपने सोचा कोई तो एक मिला है, लेकिन आप ये सोचेंगे ठीक है ये थोड़ा लेट हो गया, मैं ज्वाइन करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ये कहाँ से आई है, ये आपका इंफॉर्मेशन है। तो आपका लोकेशन पता चल गया, कहीं पे तो लोकेशन रहेगा, देखो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये आप लोकेशन पता चल गया। और उसके अलावा आपके जो ये मशीन डिटेल्स है, जो ग्राफिक्स ये जो है ना, ये मशीन का डिटेल्स है। आप जस्ट समझ सकते हो जिस मशीन या जिस मोबाइल से आप ये लिंक क्लिक किया, उसका मशीन डिटेल अगर मिल सकता है तो जस्ट आप इमेजिन भी कर सकते हो। अब मशीन डिटेल नहीं मतलब
बहुत कुछ निकाल सकते हैं। और इवन बहुत बार क्या रहता है कि आपके जो मशीन के जितने भी है वेब कैम है, सब चीजें सब हैक हो सकता है और आपको पता हो बिना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और फिर वापस ट्राई करो तो वापस वही आएगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है जिसमें आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अलावा बहुत कुछ निकल सकता है। तो ये खतरे की निशानी है कि ग्रुप्स भी अगर ज्वाइन करोगे तो आप सेफ नहीं है। इन शॉर्ट क्या है, कुछ भी करो तो आप सेफ नहीं है। सो देन आप ऐसे बोलेंगे कि इससे अच्छा ऐसे करता हूँ, पूरा बंद ही कर देता हूँ, मतलब सोशल मीडिया जो भी चीज है। तो ऐसा भयानक सिचुएशन है। तो इसीलिए जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या साइबर सिक्योरिटी डोमेन या जो एनएफएल का बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इतने सारे तरीके हैं लोगों को मतलब बहलाने के, या मतलब कुछ ऐसा ट्रैप करके उनसे लिंक क्लिक करवा देंगे। और आपको पता है बहुत सारे अभी वो लोग क्या करते हैं, हैकर्स वो सिचुएशन देखते हैं। अभी अगर मान लो नरेंद्र मोदी ने कोई अनाउंस किया कि उनको इंश्योरेंस मिल रहा है, 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आपको कोई ऐसा मैसेज आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साइट से आया है या जो भी है, वो एक्चुअली गलत रहता है। तो बोलेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन भरना है तो आपको ये मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन में एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स मांगते हैं, मतलब नेम हो, एड्रेस हो, एज हो। अभी आप तो बोलेंगे ठीक है, मिला तो मिला, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ये तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो यही लोग क्या करेंगे, यही इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ विशिंग करेंगे। तो विशिंग मतलब क्या होता है, फोन करके आप बोलेंगे मैं ऐसे ऐसे काम मतलब बैंक से फोन कर रहा हूँ तो ऐसा है, और आपके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स पता है। अगर जस्ट इमेजिन करो आपका एड्रेस भी बोल रहे हैं, देखो मेरा आप यहाँ पे रहते हैं ना, आप ये रहते हैं या जो भी है, आपका फोन नंबर है, ऐसा बताएंगे तो आपको ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो आपको लगता है हाँ ये सच में हो सकता है ऑथेंटिक कॉल हो, क्योंकि आपके पास उनके पास आपका इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन आपको पता भी नहीं है कि आपने ही दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब सीरियस सिचुएशन है जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग ही ट्रैप होते हैं, ऐसे नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर रहता है। तो ह्यूमन नेचर के जो कुछ वल्नरेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी है जिसको बोलते हैं ह्यूमन स्टुपिडिटी, और उसका कोई पैच नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अवेयरनेस ही एक हो सकता है, और जितना जो अवेयर रहेगा उतना वो सेफ है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, मैं देखता हूँ और कोई डेमो हो सकता है क्या। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एक और डेमो मेरे पास है। तो इसमें देखो ये जो भी बताया ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हैं। ये तो मैंने जो बताया वो तो छोटा चीज है, इसमें और क्या हो सकता है आप इमेजिन में नहीं कर सकते। तो इसमें एक और डेमो देता हूँ जिसको बोलते हैं साइबर स्पॉटिंग बोलते हैं। तो साइबर स्पॉटिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो वेबसाइट है एकदम सिमिलर लुकिंग नेम है, वहां पे एल का जैसे जीमेल है तो जीमेल एल की जगह 1 लिख देते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता, आप जस्ट ऊपर से देखेंगे बोलते हैं तो जीमेल है तो ऑथेंटिक है, बट एक्चुअली ऑथेंटिक नहीं होता है। तो ये जो है ये वेबसाइट क्या काम करता है कि ये सब जितने सिमिलर लुकिंग नेम्स है और वो एक्टिव है, मतलब वो कोई ना कोई यूज कर रहा है, और वही लिंक आपको आया तो आप समझ जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये ऑथेंटिक है बट होता नहीं है। तो इसका एक जो एग्जांपल देता हूँ, आप इस पे लिंक पे जा सकते हैं। तो इसमें ओके साइबर स्पॉटिंग में जाता हूँ। ओके, तो साइबर स्पॉटिंग ओपन स्पॉट, तो सीडी ओपन स्पॉट करता हूँ। तो इसमें एक कमांड रन करता हूँ मैं आपको, python3 main.py। ठीक है, तो ये स्कैन होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इसमें पूरा डोमेन स्कैन कर रहा है जिसमें सिमिलर लुकिंग, जैसे गूगल अगर है तो आप गूगल लिखिएगा तो सोचेगा रहे तो गूगल का है, बट देखो गूगल अकाउंट्स गूगल एड्स डॉट साइट ये जो है ना ये ऑथेंटिक नहीं है, बट आपको दिखा के कोई ऐसा मतलब आपको फील हो सकता है शायद ऑथेंटिक है। मैंने देखा है वेबसाइट उसमें गूगल लिखा हुआ था। तो इसमें सिमिलर टू की नेम भी हो सकते हैं जो ऑथेंटिक है, बट आपको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें ऑथेंटिक कौन सा और क्या फेक है। जैसे कि गूगल ड्राइव है तो एक्चुअली क्या है drive.google.com है, बट आपको उतना याद नहीं रहता कौन सा क्या है। अभी देखो mail.google.com है तो उसका उन्होंने क्या किया mail-googles.com बनाया, और ये सब सारे एक्टिव है, ये लाइव स्कैन कर रहा है। तो अभी जैसे फेसबुक के भी बहुत सारे होते हैं, और इसमें मतलब हर एक जो पॉपुलर साइट्स है जिसको आपको दिखा सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है साइबर स्कॉट या ओपन स्कॉट। ओपन स्कॉट एक टूल है
जिसमें डोमेन स्पॉटिंग भी बोलते हैं या साइबर स्पॉटिंग भी बोलते हैं। तो हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। सिर्फ एक डेमो है, आप देख सकते हैं कि देखो कैसे ये सब फेक साइट्स है, जिसको मतलब दिखा के आपको मतलब मिसगाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। एक और डेमो है, मैं देखता हूँ 5 मिनट में होना चाहिए। किधर गया? I think okay. Let me see. से चीज शायद है, से चीज। ओके, तो इसमें क्या है ना, मतलब आप सोचेंगे एक लिंक से क्या होगा, उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। एक लिंक से कुछ भी हो सकता है, एक लिंक क्लिक करने से। तो इसमें ऑलरेडी जो इसके पहले के कैप्चर्ड इमेजेस है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी इमेजेस पहले के सब क्लियर हो गए। तो अभी मैं ये स्क्रिप्ट रन करता हूँ, से चीज। तो वापस से पूछ रहा है, ये ngrok एक servier.net है, बट मैं जनरली ngrok यूज करता हूँ। तो ngrok में जाता हूँ, तो इसको आपको ngrok को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये चाहिए रहता है एक्सेस की। वो बना सकते फ्री में है, ठीक है। तो मैं ngrok यूज करता हूँ। तो इसमें भी है ना एक लिंक जनरेट होता है। अब ये से चीज मतलब जैसे आप बोलते हैं कि कैमरा ये करने के लिए, मैं एक्चुअली गूगल का क्या, सॉरी आई थिंक इसका प्रॉब्लम है। हाँ, तो अभी ये लिंक मिल गया। तो से चीज ऐसे इसलिए नाम दिया है कि कभी आप फोटो निकाल रहे किसी को, तो आप बोलते हैं ना स्माइल प्लीज, या से चीज बोलते हैं। तो आप जैसे स्माइल करेंगे तो फिर फोटो निकालेंगे, तो उसके ऊपर मतलब ऐसे नाम लिखा है कि से चीज। ठीक है, तो अभी उससे नाम से कोई मतलब नहीं, अभी ये लिंक से मतलब है। ये लिंक है ना, तो अभी मैं ये नमन को भेजूंगा। ठीक है, तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैं भेजूंगा, कॉपी करके कॉपी सिलेक्शन। इसमें मैं थोड़ी देर के स्क्रीन पॉज करके उनको भेजता हूँ। तो फिर आप देखेंगे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं, वो इमेजेस आ जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या है। ठीक है नमन, आप रेडी हो ना? हाँ मोबाइल में मैं भेजने वाला हूँ। हाँ। ठीक है, ओके, तो मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं वापस रिज्यूम किया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही वो लिंक गया ना, तो देखो यहाँ पे आईपी आ गई, पहले नहीं था ये। ठीक है, और ये आईपी आ गया। अभी ये जो लिंक है ये व्हाट्सएप में मिल गया, तो जैसे वो क्लिक करेगा ना, तो फिर उनका ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाएगा मोबाइल का। अगर लैपटॉप रहेगा लैपटॉप का कैमरा, देखो अब कैम प्रोफाइल रिसीव, तो रिसीव होना शुरू हो गया। ये मुझे पता है उनका फोटोज आ रहा है, उनको कोई भी मतलब 1 इंच भी उनको डाउट नहीं आएगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, बहुत ज्यादा इमेजेस नहीं चाहिए। कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी मैंने बंद कर दिया, ये मेरे कंट्रोल पे है, मैंने बंद किया। उनके पास कोई कंट्रोल नहीं जिन्होंने क्लिक किया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ls-l करके। देखो ये पहले इमेजेस नहीं थे, आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2020 का अभी का फाइल से। तो इसको मैं काली के लॉगिन में कॉपी करता हूँ, camstar.png होम काली करके शायद फोल्डर है। ठीक है, ये मैं कॉपी किया। मैं आपको दिखाता हूँ ये फोटोज क्या है, तो सो दैट आपको पता चलेगा। अभी इसके डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि फोटो देखने के लिए कमांड लाइन में नहीं देख सकते। इधर है शायद, हाँ ओपन फोल्डर करता हूँ। तो इसमें TMP फोल्डर में कॉपी करके रखा है, TMP फोल्डर। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, देखो ये फोटोज दिख रहा है आपको। ये उनको पता भी नहीं उनका फोटोज निकल चुका है। और उनकी गलती क्या है? गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने एक लिंक को क्लिक किया। तो फिर वो बोलेंगे कि तो क्या हम लिंक भी क्लिक नहीं करेंगे, फिर क्यों यूज करें, इतना महंगा मोबाइल लिया ये सब काम करने के लिए। तो इसी से आपको पता चलता है कि ये जो फील्ड है इसका कितना इंपॉर्टेंस है। और ये चीज ठीक है, तो ये मैंने अपने सिस्टम में अपने जो भी लोगों के साथ किया है, सिर्फ डेमो और या एजुकेशन पर्पस।
तो आपको क्या लगता है कि ये अगर जो स्किल है ये किसी के पास रहेगा, किसी को बेच के उनका क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक डेमो है, ये तो सिर्फ फोटोज है। आपका वीडियोस कैप्चर हो सकते हैं, आपके ऑडियो कैप्चर हो सकते हैं बिना आपको पता हुए बिना। तो आप सोचेंगे मेरे पास 40,000 का मोबाइल है, बट अगर एक छोटी सी गलती जैसे लिंक पे क्लिक करने की गलती की वजह से, मतलब यूज तो आप कर रहे, पे आप कर रहे, बट आपका सारा इंफॉर्मेशन, फोटोज, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीजें आपको पता हुए बिना वो कोई और ले रहा है, एंड उससे मिसयूज करके आपका अकाउंट खाली हो सकता है, या इवन बहुत सारे अटैक्स होते हैं जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब आपका इंफॉर्मेशन लेकर आपके जैसा कोई काम करेंगे, मतलब अगर उन्होंने कोई अकाउंट ओपन किया या कुछ काम किया और लेकिन कर रहे हैं आपके नाम पे, अगर मान लो क्रेडिट कार्ड बिल हो गया कुछ हो, वो आपके पास आएगा और फिर आप मना भी नहीं कर सकते ये मैंने नहीं किया, तो क्योंकि से सब आपके नाम पे हो रहा है, मतलब गलत काम कोई और कर रहा है और नाम आएगा आपका। तो ये इतना सीरियस है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और अभी ये चीज मैं दिखा क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज में कोई ऐसा सीक्रेट ऐसा कोई नहीं है, ये जो चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ना तो ये मैंने लिखे है या कुछ है। और कोई भी हैकर बनने के लिए या पेनिट्रेशन टेस्ट बनने के लिए आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे पाइथन आना जरूरी है क्या, स्क्रिप्टिंग आना जरूरी है क्या। वो एक जमाना था जब असेंबली लैंग्वेज में कोड करते थे, सी लैंग्वेज, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, वो सब था। वो जमाना गया। अभी कैसा है, इंटरनेट का जमाना है, तो यहाँ पे हर चीज आपको ऑनलाइन मिलेगी। तो जैसे आपको मे भी कुछ भी नहीं पता है बट फिर भी ये टूल पता है तो आप कर सकते हो। तो ये है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इनसिक्योर हो गए हम लोग। तो ये डेमो था। अब 10:02 एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये था इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर। और कुछ कुछ चीजें सोशल इंजीनियरिंग का कोई ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में डाला है। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑटोमेटेड टूल्स यूज करेंगे, यूज करके हम लोग उसके वीकनेस फाइंड करेंगे। तो वो टूल्स आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो कहाँ पे इंस्टॉल करना है, देखो अभी से लेकर तब तक के लिए 1 वीक का टाइम है। वो वीक में आप क्या कर सकते हो, ये वेबसाइट पे जाओ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो है देख लो, कुछ अगर मिस हो गया तो आप समझ लो, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में क्या क्या है टूल्स, वो सब मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसमें वीडियो सब रहेगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं, कोई भी कर सकता है। तो आप पहला एक ही समझ सकते हो, ये आपके लिए एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये आप अपने माइंड में बिठा लो। और किसी भी तरह का आपको ऐसा रहेगा कि मुझसे नहीं होगा, फॉर वॉट एवर रीजन, वो सब छोड़ दो, पॉसिबल है। और आपके पास लाइव एग्जाम्पल भी है, उनका आपने देखा भी रहेगा। तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि उनमें कोई नॉलेज की कमी है या कुछ है, तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। तो सिर्फ आपको इच्छा है करने की और मेहनत करने के लिए रेडी है, तो सब चीज फ्री है। आपको कोई ऐसे 40,000 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें इवन मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ आपसे नहीं ले रहा हूँ। और ये चीज मैंने भी नहीं किया, बहुत सारे, ये तो यूट्यूब में है ऑलरेडी। मैं तो सिर्फ आपके लाने का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अभी 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप चैट से पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर हम लोग मिलेंगे वापस सैटरडे को। So I have a small question. हाँ, Now at that time there are many antivirus which are highly paid and they are very secure. Can the antivirus stop this type of attacks like camera attack that was it was capturing images or videos? right. Is it possible that we can also crack these antiviruses, exploit these antiviruses? yes so that is possible. So actually क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी क्या है कि you know हिंदी, or should I explain in English? हिंदी चलेगा सर। हिंदी चलेगा ना। देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो चीजें है ना, हम एक्सेस दे रहे सामने वाले को। जैसे कोई ऐप है, आपको पता भी नहीं है ऐप क्या है, बट वो बोलता है कि उसमें कैमरा का एक्सेस चाहिए, माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, आपको पता भी नहीं, आप नेक्स्ट करके ओके कर देते हो। तो एक्सेस दिया किसने, आपने दिया। जब आप दे रहे हो तो एंटीवायरस सब कुछ नहीं कर पाएगा। एंटीवायरस बता रहा है देखो ये चीजें ले रहा है। अब ये कैमरा वाला केस में है ना, अगर मैं आपको लिंक देता, अगर आपको लाइव देखो मतलब चाहिए तो मैं आपको लिंक देता, तो जैसे क्लिक करोगे ना वो अलर्ट देता है। तो अभी का जो एंड्रॉइड सिस्टम है एडवांस्ड है, राइट। मे बी आपके पास 9 या 10 वर्जन रहेगा एंड्रॉइड, तो उनको ये पता है कि इस तरह से हो सकता है। तो ऑल दैट दे कैन डू इज सिर्फ आपको बताएंगे देखो आपका कैमरा यूज हो रहा है। लेकिन बहुत बार क्या रहता है, हम लोग वो जो भी कुछ ऑफर है उसके चक्कर में क्या करते हैं कि वो क्लिक कर देते हैं।
मतलब हम बहुत बार है ना अपनी गलती है, तो वो उसने तो पता है कि कैमरा यूज हो रहा है, आपने कर दिया, आपने ध्यान भी नहीं दिया और उसके बाद आपको पता भी नहीं चला क्या हुआ करके, तो ये होता है। तो ऑल दैट इवन एंटीवायरस में भी होता है ना कि सस्पिशियस फाइल डिटेक्टेड, या इवन आप इनसिक्योर साइट पे जाओगे तो बोलते हैं कि दिस इज रिस्की वगैरह वगैरह बोलता है, तो लेकिन उसके बाद ऑप्शन आपके पास है कि उसके बावजूद आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत बार क्या होता है कि वो लेवल क्रॉस करने वाले हम लोग होते हैं, और एंटीवायरस को ये जो आप बोले कि किस तरह से कर सकते हैं, और बहुत सारे जो इसको आई थिंक देयर इज अ टर्म, बहुत बार क्या होता है कोई साइट पे जाओ तो आपको बोलते हैं एंटीवायरस इंस्टॉल करो, आपके सिस्टम में वायरसेस है वगैरह वगैरह करके, फ्री एंटीवायरस है करके, तो एक्चुअली ये एंटीवायरस फ्री नहीं होता है, और आपका सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपसे इंस्टॉल करवाएगा वो वाला, ठीक है। आप इंस्टॉल करोगे एंड देन उसमें वो एंटीवायरस के साथ वो वायरस रहेगा एक्चुअली, तो उसमें आप स्टिल सॉफ्टवेयर रहते हैं जो आपका इंफॉर्मेशन या डेटा लीक या इंफॉर्मेशन चोरी करने का काम करते हैं। तो इसमें एंटीवायरस को कॉम्प्रोमाइज कब होगा, जब आप अनऑथेंटिक लोकेशन से, ऐसा ही कोई पॉपअप से या कोई मेल से आ गया या तो आप करेंगे तो आपका होगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसे एंड्रॉइड फोन है तो उस पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है ना गूगल प्ले स्टोर से ही आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई है तो आपको इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट फिर भी एज ए यूजर, एज ए रिस्पॉन्सिबल यूजर आपको एक्सेस दिया जाता है कि इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस। तो ये इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस सिलेक्ट करने वाला और इंस्टॉल करने वाला हम ही है, तो ये हमें देखना है कि ये चीज मैं करूं या नहीं करूं। तो बहुत बार रहेगा कि कोई पेड सॉफ्टवेयर का आपको फ्री में मिल रहा है तो वो आप रिस्क ले रहे हो। तो इसीलिए अभी मैंने भी जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया, मैं कभी विंडोज या जो भी मैं मेन सॉफ्टवेयर रहते हैं कभी मैं पायरेटेड यूज नहीं करता है। देखो पायरेटेड से मेरा कुछ पैसे बचेंगे, बट प्रॉब्लम क्या होता है, पैचेस नहीं आएंगे, और सिक्योरिटी पैचेस बहुत बार क्या रहता है, मुझे इंटरफेस में कुछ नहीं है, रोज अपडेट होते हैं या जो भी दो तीन दिन में एक बार अपडेट होते हैं, बट मेरे इंटरफेस में कोई चेंज नहीं है, बट ये सब सिक्योरिटी पैचेस रहते हैं। तो एक ही है, मतलब इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर या कोई भी यूजर है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड का हो तो उसे अपडेट करो। इवन एंटीवायरस भी कभी भी फ्री एंटीवायरस के चक्कर में मत जाओ, पेड सॉफ्टवेयर यूज करो। और एंटीवायरस भी यूज करेंगे तो क्या रहता है, बहुत सारे उसमें प्रोटेक्शन रहता है, ब्राउजर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन दुनिया भर के रहते हैं। तो मैं कुकी यूज करता हूँ तो उससे भी अच्छा हो सकता है, तो वो रहता है। और कभी कभी क्या रहता है कि मुझे भी कभी कभी कुछ करना है तो मुझे अलाउ नहीं करता, तो मैं डिसेबल करता हूँ टेम्परेरीली, वो करता हूँ, करने के बाद वापस एनेबल करने का। तो ये कैसा है, अपना सिक्योरिटी अपने हाथ में है। दुनिया का कोई भी टूल इतना ऐसा ये नहीं है कि आपको हर हाल में बचा पाएगा, तो आपको ये डिसीजन लेना है। कहीं कहीं तो वो बताएगा कि देखो यहाँ पे खतरा है, तो वो खतरा क्रॉस करना है नहीं करना है अपना ऊपर है। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सर? सर जो पैकेज बताया सर ने आपने, वो इंस्टॉल करके बता सकते हैं एक बार? एक ये वायरशार्क, हाँ वो जेड फिशर का, वैसे एक इंस्टॉल कैसे कर? ओके, इंस्टॉल कैसे करते हैं इसका जो मैं दूंगा। तो इसमें है ना कुछ जो पर्सनल कंटेंट है ना वो मुझे निकाल के देना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। जेड फिशर का ये क्या, देखो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्या रहता है, देखो ये गिट हब है राइट, तो ये गिट हब से अभी ये कमांड है गिट क्लोन, ये करके मैं आपको सिर्फ एक अलग पाथ पे दिखाता हूँ, कोई इतना ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अभी मेरा ये रूट पे ऑलरेडी है ना, ओके। तो इधर ls-l cd टेम्प करता हूँ, इसमें कोई फाइल है क्या, इसमें है cd tmp कर, सॉरी mkdir tmp cd tmp, ठीक है। इसमें गया, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप कुछ नहीं, इसको कॉपी करता हूँ। अभी ये मेरा नहीं है, ये गिटहब से आ रहा है, अगर गिटहब से निकाला रहेगा तो नहीं चलेगा, बट होपफुली शायद ये रहेगा। हाँ, तो इसमें कुछ है ना, कॉपी पेस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कुछ गार्बेज या कैरेक्टर लेके आता है, तो फिर वो एरर देगा आपको। अब ये क्या कर रहा है, वो कॉपी कर डाउनलोड कर रहा है मेरे मशीन में, ठीक है। अभी कितना स्टेप लगा, एक स्टेप लगा। अभी उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, सीरीज जेड फिशर। अभी इसके अंदर एक फोल्डर बन गया होगा ऑलरेडी जेड फिशर करके, किधर गया, हाँ अभी इसमें ls-l में कुछ नहीं था, अभी देखो जेड फिशर आ गया। मैं जेड फिशर करता हूँ, उसके बाद इसके अंदर गया जेड फिशर में ./जेड फिशर करो, चालू हो गया, इतना सिंपल है। ओके हाँ, तो कुछ लोगों ने, किसी ने बोला था कि मैं यू आर वेलकम, किसी ने बोला मैं काले लिनक्स यूज नहीं करता हूँ। देखो अगर आप कोई दूसरा यूज कर रहे हैं तो आपको वो मेहनत करना पड़ेगा, उसमें क्या चलता है, ठीक है।
और इसमें देखो ये फील्ड इजी वाला फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारा चीजें ट्राई करना पड़ेगा। उसमें से बोलते हैं ना सक्सेस रेट 2% बोल सकते हैं, 8 चीजें नहीं चलेंगे, 2 चलेंगे, और जो चलता है उसको लेकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो 230 किया हुआ है, अब सब चीज मैंने ट्राई किया नहीं किया, इसमें सब चलेंगे शायद नहीं, तो इसको जो आप ट्राई होता है ये है। बट ये चीज अगेन एजुकेशनल है, किसी के साथ अगर यूज करेंगे तो कानून से बच नहीं सकते हो आप, और मैं भी नहीं बच सकता। अगर मैंने भी किया रहेगा तो मैं भी कानून के मतलब ऊपर नहीं है, जो भी है अगर साइबर लॉस के अंदर आता है, वायलेशन है, तो मुझे भी जेल पे जाना पड़ेगा, तो इसमें कोई बच नहीं सकता। इसीलिए हमेशा कानून को याद रखो और उसके अगेंस्ट मत जाओ। ठीक है, और कुछ है क्वेश्चन? सो अगर मैंने फ्रेंड्स के साथ मतलब ऐसी एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर ऐसी मतलब जानने के लिए अगर ऐसी फेक अकाउंट क्रिएट करके मतलब उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की या पैकेट कैप्चर करने की कोशिश की, तो क्या साइबर लॉज का वायलेशन हो जाएगा? यस, इसमें है ना, देखो कैसा है ना, जनरली देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी मैं, आप मेरा फ्रेंड है ऐसे समझ लो, मैंने आपका कुछ किया, ठीक है, तो अभी जस्ट वो एक्शन करने से वो तो वायलेशन है, बट सजा होगा या मेरे ऊपर केस फाइल होगा वो कौन करेगा? अगर मैंने आपका कुछ मतलब ऐसे कुछ भेजा, भी मजाक मजाक में भेजा रहेगा, आपको मजाक लग रहा है वो, मतलब मुझे शायद मजाक लग रहा हो, तो आपको पता है देन आप सीरियस हो गए इसमें, तो ऐसे क्यों करते हैं आपने? अगर क्या बोलते हैं साइबर क्राइम ब्रांच होता है, तो वहां पे आपने केस लॉन्च कर दिया, तो फिर आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो केस हो गया। अगर मान लो फिर वो गुस्सा हो गया, फिर बाद में बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम मत करना, ऐसा है उस केस में, अगर वो माफ कर रहा है, अगर केस कोई आपका ऊपर फाइल नहीं हो रहा है तो तब ठीक है, बट ये एक्ट खुद ही ये इलीगल है। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब बोलते हैं ना, जब तक सजा नहीं होता है या जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक चोर नहीं है, वो वैसा हो जाएगा, बट काम गलत है अगर किसी के साथ कर रहे तो। नो इसमें सर, मैं फ्रेंड को मतलब अननोनली नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बता रहा हूँ, हम सब मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम एक सबके मतलब विद एवरीवन कंसर्न हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जो डुप्लीकेट होगा, फेक होगा, टेम्पररी होगा, और उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो वायलेशन होगा? नहीं, वो वायलेशन नहीं होगा। देखो उस केस में क्या होगा, देखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, कोई कंपनी ने खुद दिया है मुझे वेबसाइट एड्रेस कि आप ये चेक करो, इसमें अगर कुछ अगर वीकनेस रहेगा तो आप मुझे रिपोर्ट बना के दे दो, तो इस केस में उनका मैं हैक कर रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन उसने ऑथराइज किया, और ऑथराइजेशन का क्या रहता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो साइन करना पड़ता है। ठीक है, अभी इस केस में देखो इसमें रिस्क क्या होता है मैं बताता हूँ। आप फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड का नियत क्या है पूरा, जो एथिकल हैकिंग में एथिकल है ना, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एथिक्स अपने अंदर होना चाहिए। तो अगर मान लो आपने किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, अगर मान लो आपके मन में कुछ खोट है तो आपने किसी और के साथ किया, अगर उसने कुछ कंप्लेन किया, ये पकड़ा गया, तो वो क्या बोलेगा, आपको ये सब किसने बताया, क्या किया, तो वो आपका नाम बताएगा या मेरा नाम बताएगा, तो उसमें एक रिस्क ये है कि मैं भी फंसने के चांसेस है, राइट। तो ये ऐसा ही होता है ना ट्रेसिंग, तो जो भी है कॉन्फिडेंशियल, मतलब बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए कि वो जो भी यूज करके कोई गलत ना करे, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। इवन आप बता, ये नमन के लिए एक्चुअली उनका जो रूल्स है 18 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, तो 18 ईयर्स, क्योंकि क्या रहता है देखो, बच्चों का जो एज रहता है, जैसे टीनेजर एज बोलते हैं, तो टीनेजर एज बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, वो लोग को नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, और जैसे उनको थोड़ा पावर मिल जाता है तो देन दे मे ट्राई टू एक्सप्लॉइट। तो इसके वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ उनके लिए अप्रूवल लेने के लिए। जस्ट इमेजिन करो, जब 13 ईयर्स भी नहीं हुआ था तभी, तो जस्ट 13 ईयर्स होने वाला था, तो मुझे बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़े, और मुझे पैरेंटल कंसेंट देना पड़ा कि अगर ये स्किल सीख के अगर कोई गलत काम करता है तो नमन जेल में नहीं जाएगा, जेल में मैं जाऊंगा, तो वैसा था। तो उसके बाद उन्होंने एग्री किया, तो फिर उन्होंने एग्जाम दिया, वो पास किया, और सेम चीज एडब्ल्यूएस के लिए वैसा ही हुआ था। तो ये है, तो इधर देखो, जब तक आप फ्रेंडली है तब तक कोई इशू नहीं है, बट वो फ्रेंडली का जाके कुछ और मिसयूज हुआ तो उसमें आप भी ट्रैप होने के चांसेस हैं। तो सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ करो, मतलब जो भी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो इसमें देखो आप एक्ट्स ऑफ टेररिज्म क्या होता है, इवन इम्प्रिजनमेंट भी दिया हुआ है। तो ये तो सेक्शन है, सेक्शन में भी आपको और जाना पड़ेगा। पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर्स, आपने कहीं से उनका प्राइवेट इमेजेस लिया, आपने पब्लिश किया सोशल नेटवर्क की तरह, तो किसी ने चीट किया या फॉर्जरी है, पासवर्ड देखो, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, आपने उनका पासवर्ड लेके आपने किया, सो देन आपको 3 साल का जेल हो सकता है, 1 लाख का फाइन हो सकता है, साइबर टेररिज्म है।
और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इवन अपने इंडिया में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट अगर बाहर के कंट्रीज में देखोगे तो बहुत स्ट्रांग रूल्स होते हैं, और ये चीज आगे बढ़ रहा है। और आप देखो ये तो 2000 का एक्ट है, ये 2000 में जस्ट इमेजिन करो उस टाइम पे इतना नहीं था, साइबर या इंटरनेट इतना फेमस नहीं था, इतने सारे एप्लीकेशन नहीं थे। तो अभी ये इवॉल्व होगा, तो इसमें बहुत सारे लॉस अभी आ रहे हैं, वो मतलब पेंडिंग है, इसमें लोकसभा में राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो पास हो जाएंगे तो उसमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप हम डिस्कनेक्ट करते हैं और वापस कल नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। और इसका वीडियो भी दूंगा, लेकिन ये वीडियो को मैं थोड़ा सा काट छाट करूंगा, क्योंकि जहां जहां पे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और आप ये जो भी स्किल्स है रेस्पॉन्सिबली यूज करो, ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना मुझे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बाय। मालूम नहीं आगे के तेरे क्या बोले खाली घर में चिपड़ो।